Ladies and gentlemen, a warm and wonderful morning to each one of you. It is truly an honor to welcome you all of the today's seminar on entrepreneurship and innovation as a career opportunity, a theme that perfectly captures the spirit of our time. Today we gather to explore the exciting, ever-evolving world of innovation and entrepreneurship and the immense career potential it holds for inspiring minds. Entrepreneurship and innovations offer a unique and rewarding career path for these with a passion for creativity, problem solving, and risk time taking. It's allow individuals to turn their ideas into reality, build their own businesses, and make a significant impact on the world. Whether you are starting your own venture or driving innovation within a established organization, these dynamic fields offers endless opportunity for growth, learning, and fulfillment. To begin this inspiring journey, I would like to invite our esteemed Chief Guest of Honor and Speaker for the day, Mr. Venkatesh Bharti, Director and Founder of Vastav Intellect IP Solutions, along with our distinguished guests, faculty members, and respected organizers to join us for the traditional lamp lighting ceremony. Lighting the lamp symbolizes the removal of darkness and the continuous journey towards knowledge, wisdom, and enlightenment, which are integral to entrepreneurial path. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। As we ignite the flame of wisdom, we seek the blessings of Goddess Saraswati, their deity of knowledge, creativity, and inspiration. With our hearts and minds now centered, it is time to introduce our honored guest, Mr. Venkatesh Bharti, is a visionary and a true embodiment of the entrepreneurial spirit. As the founder of Vastav Intellect IP Solution, Mr. Bharti has pioneered remarkable contributions in the realm of intellectual property and innovation, guiding many on the path of entrepreneurship. I would like to invite Dr. Emin Jha, Dean Academics, Dr. Sushma Bahuguna Ma'am, Associate Dean ICT Department, and Mayank Sir to acknowledge our speaker with a token of appreciation. We are privileged to have him here with us today, and I am certain his ignites will inspiring and motivate each of us. Let us welcome Mr. Venkatesh Bharti with a huge round of applause. Thank you all for being here, and let's look forward to a day of insightful discussion and meaningful takeaways. I would like to invite Dean Academics to say something upon the intellectual property, then we'll start the session. Guest of honor, Miss Kohli, she introduced me. I am fortunate I got two intellectuals to discuss on intellectual property right, entrepreneurship and innovation. One of my dear friend and shepherds of the
Department of ICT, Professor Dr. Susma Banguna, all the faculty members of the ICT department, my friends, last but not the least, dear students. This is a great opportunity for you all and the college to have with us two such persons who are devoting time to make the country developed. However, contribution of each and every person, each and every professional is important. But why, in my opinion, in the opinion of the college, these two today have come with the great topic, great concept to share with you all. Recently, it was discussion of the market that IMF is going to declare on paper, though they are murmuring, they have shared this view, but on paper they are going to declare India fourth largest from fifth in 2025. And it is expected by 2028-29, we are all set to replace Germany also to become third. Mind it, the country who are developing or country who are at the pinnacle of the developed, mainly because they are having more and more entrepreneur in their system, in the market, in society. They have more and more innovative ideas. They more do work on patent. Unless until it happens, unless until the country influx the innovators, the entrepreneur in the market, will be simply a dream to become the developing, even though we are thinking to become the developed country. Since last 2 decades, speedily since last decade, India is moving fastly towards a startup. Many startups have now come in India, internationally recognized startup. We must feel proud of, but mind it, they simply a step or two towards the miles to go. मुझे पता है, हम सबको पता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हम इंडियन की क्वालिटी क्या है. जब आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे, दे आर नॉट इनोवेटर्स, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन ईश्वर ने उनको इंडाउट किया है पेट्रो डॉलर से. बहुत कुछ है उनके पास, बहुत लंबा नहीं रहने वाला, बट दे आर इंडाउड विथ, दे आर ब्लेस्ड, and by dint of, on the basis of those petrodollars, they are doing great in the world. जब हम इधर ईस्ट की बात करते हैं, जापान है, कोरिया, कुछ नहीं उनके पास, नो मिनरल्स, नथिंग एल्स. वो छोटे छोटे आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हर्डल्स, दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर ग्रेट इनोवेटर्स. वर्ल्ड पर छा गया जापान, कोरिया, चाइना. One of the most important parties, they are well disciplined. They are focused. IQ wise, they are not better than you all, but in between this Middle East and East, you all in between, तुम कम focused हो. भगवान ने कम इंडाउ किया है. पेट्रो डॉलर ऐसा चीज हमारे पास नहीं है, but you are having the intellect with you. You need simply to focus. And future is not with the job, future is to create job, to job creators, to innovators. So my suggestion, to focus on the entrepreneurship, idea creation, idea generation, to do something of your own, not merely to copy others, but to make the mind creative, so that you could also have something ideal individually or in a group, and you can rule on the world. And the IPR class, IPR, the what
Mr. Bharti is going to share with you a lot many things. I don't know what are the area he will cover, but he has a lot many stuff. So I also don't know that how much you will take away from this hall. This is again very important. The great person will come and deliver, but the quantum of the recipient, how much you receive, that's again important. So my session is to be focused. My session is to think towards it. A word what has been coined IPR, intellectual property right. अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, मकान है, घर है, कार है, पेपर्स हैं, कोई आपसे छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता. अगर नहीं है तो एनीबडी कैन क्लेम. लेकिन आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइटिंग, आपका इंटेलेक्ट, ऐसा थॉट जो दूसरे के पास नहीं है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप? आप कुछ आइडिया किसी को देंगे, दूसरा आदमी वो आइडिया लेके आपसे आगे बढ़ जाएगा. आप एक बुक लिखेंगे, अदर विल कॉपी एंड मूव फर्दर अहेड. यू विल गिव सम न्यू सिस्टम, न्यू आइडिया टू सोसाइटी, बट समवन एल्स विल कॉपी एंड मूव अहेड. इसके लिए एक प्रोविजन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं. इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? योर एफर्ट्स required to be protected. Your intellect is required to be protected. मैंने सिर्फ एक लाइनर में बताने की कोशिश करी है. I hope you will be focused over here. Hope you will take care of this side of your career. What? To do something of your own, to become job creator, not merely to seek merely job and earn 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs per month and just be satisfied. Okay, काफी है. नहीं, आप मार्क जुकरबर्ग बन सकते हो, आप एलन मस्क बन सकते हो. Especially the student of ICT, sky is limit. Thank you very much. Let us welcome Mr. Venkatesh Bharti with a huge round of applause. Good afternoon, everyone. So, today we are going to discuss a lot of things about entrepreneurship, opportunities as career, और थोड़ा बहुत IPR as well, because IPR is a broad topic. हम उसको customize करके थोड़ा सा ही पढ़ेंगे. थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, मैं पढ़ाता नहीं यार, बस बताता हूँ चीज़ें कैसे कैसे होती हैं. उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ आपको कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ. कभी आपको लगे कि पता नहीं कौन आ गया, क्या ये बता रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं इसको. तो ठीक है. Myself Venkatesh Bharti. I'm the youngest scientist of 2022 awarded by Shri Rajnath Singh, and I'm a DRDO scientist. As well, I am the founder and Vastav Intellect IP Solution, Vastav Incubatics and Entrepreneurship Foundation, CEO of Exocore IT Services Private Limited, and co-founder at Acadbuddy LLP. So, apart from that, I am having more than 80 patents granted on my name and 100 plus patent matlab IPs I am having that has been commercialized. So that's what I am doing right now, and moreover I will discuss in slides. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे जो जिनका स्टार्टअप माइंडसेट है कि मेरे को स्टार्टअप करना है? हाथ खड़ा करके बताओ. One. Only one. Anyone else? देखो मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं नीचे आके डिस्कशन करता हूँ, मेरे ऐसे पीपीटी पढ़ के काम नहीं होता. Anybody else? जॉब ओरिएंटेड लोग कौन है यहाँ पे जिसको जॉब करनी है? 1 2 3 4 5 6 तो मैनी जॉब देनी है. जिसने ऐसे किया मतलब कि वो खुद डाउट है, उसको सिचुएशन ही डाउट में चल रहा है. 1 2 3. अपने अपने नाम बता दो. नाम क्या आपका? शुभम. आपका नाम? तनिष्क. मैम आपका नाम? मानवी. ओके, मैं आपसे और कनेक्ट करूंगा. चलो जानते हैं कि आज हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं. अच्छा, मैं क्या लिखा है? बैक कीजिए, बैक कीजिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर स्लाइड, सो व्हाई शुड आई टेल यू हियर? तो मैं टॉपिक्स आपको क्यों बताऊं? आज का हमारा मेजर टॉपिक क्या है? जैसे कि हमारा प्रदुमन जी कह रहे हैं अभी कि एंटरप्रेन्योरशिप और क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईपीआर हो गया मैम, और
इनोवेशन और क्या, करियर अपॉर्चुनिटी। कूल। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजों की शुरुआत कहां से होती है। जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई, एक मीटियोर के टकराने से। तो हम सारी चीजों को एक जगह लाके रख देते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 I। त्रेता युग वाली आई नहीं है वो, 3, 1 I, 2 I एंड 3 I। I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, मैं ऐसे बता रहा हूं। तो आप में से कौन मुझे बताएगा वाई I1, व्हाट इज I1? एनीवन? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज I1? बताओ बताओ, I1 क्या है? थोड़ा क्लोज था यार। कौन बोला इनोवेशन? पीछे चले गए आप। और कोई बताओ। नहीं यार, मैं तो मैंने स्टैंड फॉर बोला था। कौन बोला? अरे इधर आओ सर, क्या नाम है आपका? I1 स्टैंड फॉर आइडिया। आपका नाम? आदित्य। आदित्य के लिए क्लैपिंग हो जाए यार थोड़ी। बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज I2? I2 क्या है? क्या इनोवेशन वाले कहां गए? किसने बोला था? आपका नाम? रिया। रिया जी के लिए तालियां हो जाए। हूटिंग नहीं हो जाए यार, हूटिंग नहीं, तालियां चलेंगी। नाउ आइडिया, इनोवेशन एंड लास्ट वन। यस मैम? नो मैम, नॉट इंफॉर्मेशन। ये हल्का सा इम्प्लीमेंटेशन मेरे को सुनाई दिया मेरे कानों में। कौन बोला? कौन, क्या नाम है आपका? क्षितिज जी के लिए भी तालियां हो जाएं थोड़ी। ओह बहुत बढ़िया। सो देयर आर 3 थिंग्स दैट इज द कॉमन इन एवरी स्टार्टअप, कॉमन इन एनी एंटरप्रेन्योर जर्नी। कुछ भी कह लो यार आप, एंटरप्रेन्योर, जब आपके जेब में पैसा होगा तो सब लोग वही मानेंगे जो भी होता है। So I1 stands for idea, means ideation. I2 stands for innovation and I3 stands for implementation. सारा का सारा स्टार्टअप कल्चर कहां से शुरू होता है? एक आइडिया से जो बदल देता है आपकी जिंदगी। देन I2 क्या होता है? उस पर्टिकुलर आइडिया को पेपर पे उतारना। व्हाट इज दैट? दैट कम्स टू इनोवेशन, कि हमने कोई इनोवेट चीज कर दी है, हमारे पास उसका एक स्ट्रक्चर है। राइट नाउ पार्ट 3, implementation. Now we have to implement that idea what we have think about in the previous 2 steps. This is the journey of any innovation, journey of any prototype, any startup, anything. किसी intellectual property की उसी से जर्नी स्टार्ट होती है। इससे पहले हम आगे जाएं। नाउ द लास्ट थिंग इज, अब इस सारी चीजों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? हम अपने आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आइडिया को पेटेंट के थ्रू कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एनीवन एल्स? हम अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? पेटेंट करके। चलो एक मोबाइल के थ्रू जानते हैं कि व्हाट इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। हम इसमें ब्रीफ में नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग सेशन हम लोगों ने डिफाइन किया है। ये एक मोबाइल फोन है, राइट? इससे पहले एक और स्टेप चल रहे हैं। मेटा कंपनी का नाम सुना है आप लोगों ने? किसकी कंपनी है? मार्क ज़करबर्ग, राइट? मेटा के अंदर और सब कंपनीज कौन कौन सी है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड भी है, राइट? अब इन सारी कंपनीज के अंदर जब हमारे को कुछ करना होता है तो हमें उस पर क्या करते हैं? रजिस्टर, राइट? तो मेटा के अंदर जितनी भी कंपनीज है, दोज आर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस समथिंग, राइट? किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए वो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है।
वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर एक पेरेंट कंपनी है, इट इज एन पेरेंट कंपनी। नाउ इफ वी मूव टू द फर्दर, आईपीआर के अंदर काफी सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वैरायटी और ट्रेड सीक्रेट्स, राइट। अब उन सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर अलग अलग चीजों को हम रजिस्टर कर सकते हैं। अब पेटेंट जो सेगमेंट होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है फैकल्टीज के लिए भी, बच्चों के लिए भी। क्या हम अपना हमारी किताब क्या पेटेंट हो सकती है, हमारा डिजाइन पेटेंट हो सकता है, ये हो सकता है, वो होता है, बहुत स्कैम्स भी चलते हैं इसमें। तो पेटेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजों को ही करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर एक मदरबोर्ड होगा, सब जानते हैं। मदरबोर्ड के अंदर कितनी सारी आईसीज होंगी, बैटरी होगी, बटन्स होंगे, राइट। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, जेड तक जितने भी आईसीज इस मदरबोर्ड से कनेक्टेड हैं, वो पूरा प्रोसेस, उस टेक्निकल प्रोसेस को मैं कहां रजिस्टर करा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ पेटेंट सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा उसके अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पेटेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस ही रजिस्टर हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू डिजाइन, जो हमारी इंडिया के अंदर डिजाइन पेटेंट भी कहा जाता है, यूटिलिटी पेटेंट, जैसा सब कुछ नहीं होता। इंडिया के अंदर सिर्फ पेटेंट और डिजाइन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ऐसा है। सो अब हमें ये पता चल गया कि ये मोबाइल फोन चल कैसे रहा है, हमारे पास उसका प्रोसेस है, हमने उसको सिक्योर करा दिया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, अब हमारा मोबाइल फोन दिख कैसा रहा है, उस दिखने के स्ट्रक्चर को हम कहां रजिस्टर कराएंगे? डिजाइन के अंदर। नाउ इस मोबाइल फोन का लोगो कैसा दिख रहा है, वो कहां पे रजिस्टर होगा? ट्रेडमार्क के अंदर। और जब हम मोबाइल फोन को ओपन करेंगे और जो ट्यून निकलेगी, धुन निकलती है ना, एक मोबाइल नोकिया का फोन ओपन करते हैं, वो दो हाथ मिलते हैं ऐसे आगे, राइट। तो उस ट्यून को हम कहां रजिस्टर कराएंगे? कॉपीराइट के अंदर। इतना ही है हमारा आईपीआर। और इसमें काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो कंफ्यूजन हम लोग, हमारा कभी उस पर ब्रॉड सेक्शन होगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ओके, एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज इट, ये क्या होता है? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, टेकिंग रिस्क, क्रिएटिंग वैल्यूज बाय बिल्डिंग अ वेंचर फ्रॉम द ग्राउंड टू अप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है अपनी जिंदगी का, जहां पर आप सब बर्बाद कर सकते हो। मैंने भी किया। I was a Nokia data scientist. I got the package of like around 35 LP and all, and I quit that job within 10 days, just because of my startup. हम उसको कीड़ा भी कह सकते हैं, हम लोगों ने किया हो। But still, at that time, what you can do? Whether you proceed with the entrepreneurship, whether you proceed with your job. At that time, I took a risk on my own future. पहली चीज, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहले मैंने देखा कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टार्टअप पे काम करना चाहता हूं, तो एट दैट टाइम आई हैव टू क्विट माय जॉब टू गिव द 100% इन माय स्टार्टअप। नेक्स्ट इज लाइक, उसमें रिस्क कितना है, उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर को मैंने देखा कि हाउ मेनी डिपेंडेंसी दैट आई एम हैविंग, उस डिपेंडेंसीज को मैंने कट शॉर्ट किया। Now, after removing all the things from my zero to becoming a hero, I growed up from the ground to up. That is only about, that is the basic thing of one entrepreneurship. अभी हम लोग इसमें एक गेम भी खेलेंगे, नेक्स्ट कीजिए सर आप। इन्हीं सब चीजों को करने वाला पर्सन को मैं एक एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। पहले के जमाने में ये सब वर्ड्स नहीं थे। पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती थी, जो दुकानदार होता था, दुकानदार ने 5 लड़के रख दिए, उसका स्टार्टअप हो गया, 5 लड़कों से 500 लोगों की टीम बन गई, वो बिजनेस बन गया। स्टार्टअप इज नॉट लाइक कि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी सोचनी है या कोई ऐसे आइडिया सोचना है जो कि एक पर्टिकुलर न्यू हो, जिसको कहते हैं नोवल आइडिया, न्यू आइडिया हमारे को आना चाहिए जो रेवोल्यूशन लेकर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं रादर देन। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, बोट एक स्टार्टअप है या बिजनेस है? स्टार्टअप वाले हाथ खड़ा करो।
पीछे चले जाओ बिल्कुल लास्ट में। हाउ कैन यू से दैट? नो, बोट इज नॉट अ स्टार्टअप। बिजनेस वाले कौन है? दोज हु आर बिजनेस। तालियां बजाओ इन सबके लिए यार। बोट एक बिजनेस है। बोट क्या करता है? बोट चाइना से माल इंपोर्ट करता है, OEM कहते हैं हम उसको, और यहाँ पर अपना लोगो लगा के बेच देता है। तो इट्स नॉट अ स्टार्टअप गाइस। जोमैटो एक स्टार्टअप है, बिजनेस है। हाँ, अब खुद के लिए सब तालियां बजा लो, ये अच्छा है। जोमैटो कौन सा बिजनेस है मुझे ये बताओ? फूड डिलीवरी, फिर गलत बोल रहे हो। ब्लिंकिट है वो, क्या कर रहे हो? जोमैटो कौन सा बिजनेस है? इट्स अ लॉजिस्टिक बिजनेस। हाँ, नो मैम, इट्स नॉट अ फूड डिलीवरी बिजनेस, इट्स अ लॉजिस्टिक बिजनेस। हाँ, C2C कौन बोला? तालियां मार रहे हो। हाँ, जोमैटो स्विगी नहीं है, स्विगी नहीं है, स्विगी B2C नहीं है। हाँ, क्योंकि स्विगी के दो बिजनेस है। स्विगी अपना आउटलेट भी देता है, स्विगी लॉजिस्टिक भी देता है। कभी आपने देखा होगा जोमैटो से आपने डोमिनोज किया तो डोमिनोज का राइडर क्यों आता है? डोमिनोज का राइडर आता है ना लेकर के पिज्जा आपका, जोमैटो का तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि डोमिनोज वाले ने उसका लॉजिस्टिक बिजनेस नहीं लिया होगा। देयर आर ऑप्शंस। आप हमारा लॉजिस्टिक बिजनेस लेना चाहते हो या हमारा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम लेना चाहते हो? तो वो दो अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं। मोटिवेटर, गुड लीडर, गुड लिसनर, विजनरी, रिस्क टेकर, इनोवेटर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्टार्टअप पर्सन के अंदर। ये सब क्वालिटी तब खत्म हो जाती है जब आपकी जेब में पैसा खत्म हो जाता है। ये जो आपको ये सारी क्वालिटी दिख रही है, गुड लीडर, ये गुड लिसनर, फिर सब खत्म हो जाता है वंस यू डोंट हैव मनी। I started my own business from 0% capital and very next day I earned 70,000। फिर मैंने और कमाए और फिर मेरे जीरो हो गया, फिर मम्मी से पैसे मांग रहा। तो that's how startup culture done। But yes, at certain, अब तो 7 साल हो गए, it's grow over 72 CR। तो उस हिसाब किताब से चलता है वो। तो what you have to do, वो 72 CR मेरा वैल्यूएशन गाइस, मेरे इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, कंपनी वैल्यूएशन अलग है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपका विजन क्या है, आपको करना क्या है। कोई गुड आइडिया नहीं था यार मेरे पास, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें। नेक्स्ट करो। गुड आइडिया नहीं, गुड पर्सन होना चाहिए, जिद्दी भी होना चाहिए उसके लिए। एंड यू हैव टू बी, मेरे पास बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, आई डू अ लॉट ऑफ सेशन इन IITs एंड ऑल। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रोफेसर की सर मेरे को अपने इस पर्टिकुलर लाइफ से कुछ और नया करना है। मैंने कहा ठीक है कीजिए। फीमेल फैकल्टीज आती है तो वो भी मेरे को बोलती है आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय ओन। मैं ठीक है कीजिए। मैंने कहा आज आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं, परसों 20,000 होंगे, और उसके अगले दिन 5 रुपये होंगे, और उसके अगले दिन 1 रुपया होगा। हाउ यू विल मैनेज योर मेंटल हेल्थ? कहती है आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। मैंने कहा फिर आप नहीं कर सकते। पेशेंस चाहिए इसके लिए। आप सबसे ज्यादा इंसान तब पागल हो जाता है जब उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीरो हो जाता है। मैं तो पता नहीं कितनी बार गिरा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस लेवल तक गिर जाता है कि आप, यस, वन मोर थिंग, आपको कभी भी किसी स्टार्टअप में डेट में नहीं जाना, डेट में नहीं जाना। अगर आप डेट में गए तो फिर आप दोबारा रीगेन करने में फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो नेवर गो इन डेट। वो बहुत लोएस्ट स्टेज हो जाता है कि आप जो कमाना चाहते हो वो भी नहीं कमा सकते, क्योंकि आप उसी में फिर लूप क्रिएट हो जाता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको क्या मिलता है? फ्रीडम टू क्रिएट समथिंग, पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट, हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल। इसके पीछे अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है बट इसके पीछे नोट ही लगाए हुए हैं मैंने, डॉलर्स। तो इसी के लिए लोग सब काम करते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता दैट डे वन से यू आर स्टार्ट जनरेटिंग मनी। यू विल नॉट एबल टू जनरेट मनी फ्रॉम द स्टार्टिंग। टाइम लगता है उसमें। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ वो भी होता है। नेक्स्ट कीजिए सर, एक इवेंट पे चलते हैं हम लोग। ओके, नाउ द बेसिक थिंग इज लाइक व्हाट इज योर ड्रीम स्टार्टअप आइडिया। किसी के पास, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आई एम हेयर टू टेक आउट अराउंड 3 to 4 स्टूडेंट्स विद मी टू बी द पार्ट ऑफ माई ओन स्टार्टअप्स एंड ऑल।
and that this is the open opportunity for you guys, whomsoever wants to join with me, and they can, but you have to prove me here, and God swear I will take you out. तो मजा, स्टार्टअप में बहुत मजा आता है भाई, घूमने फिरने को मिलता है बहुत। तो चलो, we start with the dream idea startup. पिच करते हैं। You know what is pitching? Hi sharks, my name ये वो ऐसा नहीं करना। कौन दे सकता है अपने ड्रीम स्टार्टअप आइडिया का पिच यहाँ पे खड़े होके? Anybody who's having guts in रोहिणी? कोई पिचिंग कर सकता है यहाँ पे? स्टार्टअप्स वाले 1 2 3 थे ना वो लोग। गाइस अपना आइडिया मत बताओ, बट यू स्टार्ट पिच। आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक हाउ पोटेंशियल यू आर, हाउ मच पोटेंशियल यू आर हैविंग। अरे मेरे से बात करो यार, मैं 1 घंटे के लिए हूँ, मैं चला जाऊंगा बाद में, फिर करते रहना बात। कर रहे हैं? आ जाओ, क्लैपिंग फॉर हिम यार, बहुत सही। हूटिंग नहीं भाई, हूटिंग नहीं। आ जाओ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शुभम रावत। हाय, मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ BCA और MCA के बच्चों को। यस सर। सो फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर, राइट? आप भी होगे, मज़ा तो आता है सॉफ्टवेयर बनाने में। फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ प्रोडक्ट टू अस। उसको बनाने में पैशन भी लगता है और थोड़ा सा लाइक फ्लेयर भी होता है। एंड आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स मेकिंग सॉफ्टवेयर। Currently, I'm like making software for freelancing purposes. So that's what I want to do. I'm doing at the moment, yeah. Okay, so you are doing like freelancer? No. I'm working with my senior, and we are like collaborating and like building from the ground up. So It's a kind of sort of startup or something. yeah, we're connecting to the client, and on the basis of their requirement, we are creating the software for them. So you are doing some like a software agency kind of. Yeah. So why don't you start your own business and इसमें आप तो काफी ग्रो कर सकते हैं freelancers के थ्रू। I'm looking for people like me. Hey. यहाँ पर भी हाँ, ये मेरे स्टूडेंट्स कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं। असाइनमेंट कर रहे हैं वो, मैंने असाइनमेंट दिया अभी। हाँ जी। थैंक यू सर। a huge round of applause for that. देखो सर के अंदर इतने गट्स हैं यार, तुम्हारे अंदर नहीं है, क्या बात कर रहे हो? मैं अपने कॉलेज में होता तो मैं तो बाहर जाके कर देता। तो अच्छा, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू पिच देयर आइडिया यार? किसी को अपना आइडिया देना है? अरे दो यार, आ जाओ। दीपक जी राइट इट डाउन नाउ, नेम्स एंड ऑल, लाइक somebody who wants भाई SIH का नाम सुना है सबने? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सबने सुना है? रीजनल लेवल जजू में वहां पे, तो डोंट वरी, तुम्हें वहां तक भी ले जाऊंगा मैं। मेरे साइन करने से आगे बच्चे चले जाते 3rd 4th राउंड में। वहां पे आ जाओ, आना है। मेरे इंक्यूबेशन सेंटर में फ्री एंट्री, अब और चाहिए? एटलीस्ट शो योर स्पिरिट यार। कोई नहीं है, सब जॉब सीकर हैं, सब जॉब सीकर हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, एक मैं यहाँ लाइन लिख के चले जाता हूं और उसको तुम मिटाते रहना जब तक तुम वो बन नहीं जाते। यू आर नॉट एबल टू सेल योर सेल्फ राइट नाउ। जॉब सीकर एक वो पर्सन होता है, दोज हु कैन सेल देमसेल्फ। आप अभी खुद को नहीं बेच सकते, यू डोंट हैव दोज क्वालिटीज एज वेल। तो जॉब सीकर तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले खुद को बेचना सीखो। सो कभी भी कोई भी जॉब ओनर आपको, जॉब सीकर आपको, जॉब टेकर आपको कब लेगा? जब यू आर एबल टू सेल योर सेल्फ। ओके, स्टार्टअप कल्चर एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वहाँ पे। तो 10 बजे उठ जाओ, 6 बजे चले जाओ, 5 बजे चले जाओ, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द काम कि आपके पास what was the workload you are having. If you are completing your work within 3 hours, घर जाओ। इट्स नॉट लाइक कि आपको नेक्स्ट टास्क करना है, बिकॉज कॉर्पोरेट के अंदर भी ये होता है, आप टिकट साइज के हिसाब से काम करते हो। इफ यू आर हैविंग 2 टिकट्स और वो टिकट कंप्लीट हो गई है, बैठे रहो।
No, you don't have any other work. Collaboration and team spirit. Yes, you got the networks, a lot of networks. मैं आपको सिंपल बताता हूँ, whenever there is a startup और उसके अंदर कोई और पर्सन काम करता है, there is always another person जो स्टार्टअप कल्चर से निकल के आया होता है. इट्स नॉट लाइक कि वो कहीं से जॉब ओरिएंटेड पर्सन को उठाते. नो, दे ऑलवेज चूज अ पर्सन हु इज हैविंग द स्टार्टअप माइंडसेट. क्योंकि स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है. इफ यू आर डोंट हैविंग सच काइंड, यू वांट टू जॉब लाइक 9 to 5, 9 to 6, नो, दे विल नॉट हायर यू एनी हाउ. इवन दे विल गिव यू अ वेरी गुड सैलरी हाइक, बट नो, दे विल नॉट हायर यू. ओके, फोकस ऑन मिशन एंड विजन. यस, दे आर गोल ओरिएंटेड, वेरी वेरी गोल ओरिएंटेड. They don't. अभी right now, अभी 2 दिन पहले we acquire one startup, क्राइव नाम का वो स्टार्टअप है. They are इंदौर में है वो स्टार्टअप. What they are doing providing tailors online. अभी फेस्टिव सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और जब शादियाँ होती हैं तभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. What was the problem? that कि टेलर्स के नखरे बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमने उनके नखरे हटा दिए. हमने खुद के टेलर्स को हब बना दिए. हम अब वहाँ पे ऑल्टरेशन प्लस आपका कट शर्ट जो भी रहता है वो सब चलता है. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, अगर हम इसमें बात करें, कोई इसमें अंदर हमारा मेन प्रॉब्लम ये था कि प्रीमियम क्लास टेलर्स के पास नहीं जाती, वो फैशन डिजाइनर्स के पास जाती है. और उनके कपड़े ऐसा नहीं होता कि पापा के नाप की शर्ट ले आए और यहाँ तक आ रही है. नो, उनका कस्टमाइज रहता है सब कुछ, राइट. सो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है Tier 2 and Tier 3. Next, sir. Innovation and design. Innovation design के ऊपर बहुत सारी चीजें we'll discuss. Next, sir. Innovation design is something like whenever you are connecting with the people and solving a real life human centric approach problem. Uber को जानते हो आप लोग, Ola को जानते हो, और किसको जानते हो? Rapido को जानते हो, Oyo को जानते होगे. क्या? InDrive. अच्छा. Grab, ग्रो, ज़ेरोथा, ये सब भी जानते हो. और एयरबीएन भी जानते होगे आप. हाँ, दीज आर इनोवेशन डिजाइंस. वाई दीज आर इनोवेशन डिजाइंस? मैं आपको बताता हूँ. इनोवेशन डिजाइन के अंदर जो स्टार्टअप आता है वो उसको इनोवेशन डिजाइन कहते हैं. वो रियल स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन बोर्ड जैसी कंपनीज आर नॉट स्टार्टअप्स. जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर के जा रहे हैं. ह्यूमन सेंट्रिक समझ रहे हो? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन हूं, मेरे को मद्देनजर रखते हुए कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन के अंदर आएगा, और वही एक स्टार्टअप काउंट होगा, रियल स्टार्टअप. अदर्स आर नॉट स्टार्टअप्स. प्रोडक्ट बेस में भी बहुत कम स्टार्टअप्स निकलते हैं, सर्विस बेस के अंदर काफी निकलते हैं. अब हम बात करते हैं रियल लाइफ स्टार्टअप्स की. नेक्स्ट. अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ. मैं 11 लाख लोगों में से इकलौता जीता गया था. मैं आपको इतना बता देता हूँ. Among 11 lakh people, I'm the one who got that award. लेकिन मैं 12वीं में फेल हो गया था यार. नेक्स्ट करना. मैं यार मैथमेटिक्स में फेल हो गया था मैं. हम भी क्या बात, फिजिकल एजुकेशन तो, बट आई फेल्ड इन 10th 12th मैथ्स. तो हाँ, 12th में फेल नहीं हुआ था, फिजिकल एजुकेशन से पास हुआ था. डोंट वरी. फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिया. वाई आई एम शोकेसिंग यू दिस, दिस इज द एजेंडा. लाइक आप जो भी कर रहे हैं, योर डेस्टिनी इज नॉट डिफाइंड एट दैट टाइम. पीपल आर सेइंग, मतलब माई फादर वॉज नॉट यूज टू डू दैट, लाइक तो फेल हो गया, सब नहीं है. मेरे पापा काफी चिल थे. तो ये इस टाइम पे आई वॉज शैटर्ड, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ माई some people in my school time. They were like कि you cannot do anything, and that was a phobia that I got उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे. अभी तो एजुकेशन काफी चेंज हो गया है, बच्चों को काफी पैम्पर किया जाता है स्कूल्स के अंदर एंड ऑल. बट मैं केवी से पास आउट, तो वहाँ पैम्पर नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ टीचर्स की नौकरी नहीं जाती ना, तो पैम्परेशन नहीं है वहाँ. तो वहाँ पे सिर्फ पिटाई है. तो मेरे मैथ्स में 10 नंबर आए. आफ्टर दैट आई वाज लाइक क्या बात है, ये क्या हो गया. सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी. उसी के 3 साल बाद व्हेन आई वाज इन माय एमसीए, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर. मैं एमसीए में गोल्ड मेडलिस्ट किया था मैंने. आई एम ऑल्सो अवॉर्डेड, आई एम ऑल्सो अ वाइस प्रेसिडेंट मेडल होल्डी. तो
आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाएगी, आई नेवर नोज। अभी आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज हैविंग हु इज डूइंग अ जॉब, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उससे बोला गया कि आप हमारे लिए, या मैं सौरभ बोल देता हूँ, सौरभ हमारे लिए एक ऐसा AI बॉट बनाओ जो आपके कोड को रिफाइन कर सके। उसने बना दिया, ही वाज अ लैम्डा डेवलपर, तो उसने बना दिया उसके लिए। बनाने के बाद व्हाट हैपेंड, उसी को निकाल दिया, क्योंकि वो तो AI मिल गया ना उनको। तो दोज हु आर थिंकिंग अबाउट कि आप सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट से यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, नो, यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, देयर इज ब्लैक बॉक्स AI। आपको पता होगा CSS के साथ कोड दे देता है वो। तो you have to change yourself, update yourself regarding the new things that are coming into the market right now. सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, काफी सारी सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ यार कि Airbnb क्या करता है, व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ देम? Airbnb क्या करता है सर, आपको तो बताइए, और बताओ Airbnb क्या करता है? मतलब हाउस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाउस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, काम वाम देते हैं, मतलब किसी को अगर जैसे मतलब तो जैसे अगर किसी को मतलब रुकने के लिए कोई होटल वगैरह चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाता है। हाँ जी। एनीबॉडी एल्स? लेकिन आंसर गलत था, कोई और बताओ। सर शॉर्ट टर्म में इनको होटल्स रूम्स प्रोवाइड करना। आजो बैक बेंचर्स। होटल्स देता है और आपको पर्सनलाइज्ड एक्सेस दे देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। चलो, अब वैसे Airbnb क्या करता है, वो होटल्स नहीं देता, वो होम स्टेज देता है। हाँ, होटल्स नहीं देता, होम स्टेज देता है। वो अपने कोई फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ गुड फार्म हाउस, तो मैंने उसको Airbnb पे लिस्ट करा दिया। अब कोई कस्टमर आएगा, वो मेरे से रूम ले लीजिए, मेरा रूम हाउस ले लेगा। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग होटल्स, इट्स नॉट कम्स अंडर द होटल्स, स्टेज देता है वो, राइट। अब हम बात करते हैं WeWork। व्हाट इज WeWork? कोई नारा नहीं है WeWork। No. Anybody else? भाई साहब क्या है? तो बढ़िया है, बताइए ना क्या करता है WeWork? मेरे को नहीं आइडिया। किसी को पता है? कम्युनिटी में काम नहीं करता है वो, इंसान थोड़ी है WeWork, कम्युनिटी में कैसे काम करेगा? नहीं, हायरिंग भी नहीं करता है वो। कोई और बता सकता है व्हाट डू WeWork डू? क्या बात है? और WeWork क्या करता है यार? WeWork एक प्लेस बनाता है, पहली चीज, देयर इज अ प्लेस, वहां पर एक प्लेस है, उस प्लेस के अंदर बहुत सारी सीट्स हैं, वो सीट्स रेंट पे देता है। फॉर एग्जांपल मेरे को 6 साल का वर्क फ्रॉम होम दिया गया, मैं होम सिकनेस हो गई है, राइट, मैं फोबिया हो गया घर में, मम्मी का सुन गई, चाय ले आ, ये लिया, वो लिया, तो आई वांट अ न्यू स्पेस टू वर्क। तो हम WeWork पे जाएंगे, हमने अपने लिए एक सीट बुक करी, मेरे को एक कैबिन मिल गया, मैं वहां पे बैठ के काम कर रहा हूँ। दैट्स हाउ अ WeWork वर्क। अच्छा, टेस्ला क्या करती है तो बताइए होगा? इलेक्ट्रिक कार में सबको पता है, अभी तो किसी का मुंह नहीं खोल रहा। अच्छा, नेटफ्लिक्स ने किसका करियर बर्बाद कर दिया? किसका? यस, मूवीज का तो कर, मूवीज का कैसे करियर बर्बाद कर? मूवीज तो देखते हो हम। किस, कौन बोला भाई? पेन ड्राइव कर गया हो तो ब्लॉकबस्टर। कार्तिक के लिए तालियां हो जाए थोड़ी, तुम्हारी तालियां भी फ्री में नहीं बज रही यार, तेज बजाओ। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, GoPro देखा है? वो जो GoPro लगा के कूद जाते हैं, ऐसे करते हैं, ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं, एंटरप्रेन्योर से भी ज्यादा। तो GoPro ने किसका करियर खराब कर दिया? DSLR तो यार अभी भी उनके बाद है, कहाँ से करियर खराब? फोन कैमरा क्या बात कर रहे हो? फोन तोड़ दो, कैमरा उन्हें फेंक दो। किसने वो देखा था आपने कभी? पहले सोनी का एक हैंडी कैम आता था, छोटा सा, जिसको वैसे लेंस मार रहा था,
उसका करियर खराब कर दिया उसने। अच्छा एयरपोर्ट्स तो चलो लेगो देखा है कभी, क्या है वो, ब्लॉक से गेम्स राइट। अच्छा ओके, ओयो के बारे में जानते हो, उसने किसका करियर खराब कर दिया? बताओ बताओ। किसका? ओयो ने। उसने किसी का बर्बाद तो नहीं। किसका करियर खराब कर दिया? होटल्स का? नहीं सर, उसने तो हेल्प ही करी है उन्हें। लोगों का? भाई लोगों का कैसे कर दिया उसने? जरूरत से ज्यादा जानकारी भी खतरनाक है। चले नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यार सब नहीं बता सकता मैं। जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या जर्नी रहती है एक एंटरप्रेन्योर की? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं रहता वहां। यू हैव टू लाइक देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को। वन इज डिजाइन थिंकिंग, अनदर इज क्रिटिकल थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के अंदर क्या होता है, पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से चढ़ने से मैं एक एलिवेटर भी लगा सकता हूँ छोटा सा, जैसे कि व्हील चेयर वाले पर्सन चढ़ सके, पीपल हु आर हैविंग हैंडीकैप्ड एंड ऑल, स्पेशल पीपल, सो वो ऊपर आ सके। देयर इज अ प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर नहीं है। व्हाट वाज द सॉल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ एलिवेटर आई कैन पुट हियर। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिटिकल थिंकिंग यूटिलाइज करूंगा। एक चीज को इतनी बार सोचो, उसका इतनी बार इनोवेशन करो कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अप्रोच आपको मिले। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। उसी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। नाउ डेवलप अ सॉल्यूशन। उसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ उस पर्टिकुलर चीज से हम सोचते हैं कि पैसा कैसे बनेगा, बिकॉज कोई भी स्टार्टअप बिना पैसे के तो चलेगा नहीं, राइट? हम इस पर्टिकुलर चीज को और इंस्टीट्यूट्स में और ऑडिटोरियम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल, रेंट आउट, और ये सारी चीजें हम लोग बेच भी सकते हैं, सब चीजें। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब उस पर्टिकुलर चीज को स्केल कैसे करेंगे, इंडिया के अंदर हो गया, दिल्ली के अंदर हो गया, नाउ स्केल इट टू मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल, दैट इज स्केलिंग। लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड सक्सेस, ये तो मिलता ही है। जब आप ये नहीं चला बिजनेस, दैट इज फेलियर, चल गया तो सक्सेस। यस, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी ये पर्टिकुलर चीज फेल होती है, हाउ टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज दैट यू आर हैविंग। उन पर्टिकुलर चीज को, रिसोर्सेज को आपको इस्तेमाल कैसे करना आना चाहिए, ये चीज आपको जरूर लर्न करनी है किसी भी स्टार्टअप के फेल होने से। ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं 3 बार फेल हुआ, मैं यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ गिर गया, फिर मैं दूसरी बारी में तो बिल्कुल ही अंदर चला गया। तो इट्स नॉट लाइक कि एक स्मूथ जर्नी होती है, जर्नी ऊपर नीचे ही रहती है, बाद में जाके स्मूथ होती है। ओके, दैट इज द सिंपल जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बट देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल। एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। तो सिमिलरली कभी भी आप सोचोगे एक स्टार्टअप करना है और आप उसका पुल पार कर दोगे, नो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उस रिवर के अंदर कितनी मछलियां थी, कितने पत्थर थे, कितना कूड़ा था, और रिवर की दिशा कैसी थी। तो फॉर दैट यू हैव टू एंटर इनटू द रिवर। आपको रिवर के अंदर जाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट योर स्टार्टअप। आप अपनी ये जॉब ओरिएंटेड पीपल और नॉन जॉब ओरिएंटेड पीपल के लिए, दोनों स्टार्टअप्स के लिए, दोनों के लिए एक ही चीज है, सर डोंट स्माइल। उनको बोलो असले यार। तो क्या कहते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू उस पर्टिकुलर चीज के लिए। सो यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम एट दैट टाइम। हाँ, पेशेंट कौन बोला? चलो कोई। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, आप उस चीज को इतनी बार करो कि आपसे बेहतर कोई ना कर पाए। देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, हु आर यू, और उस पर्टिकुलर चीज की इन डेप्थ आपको तभी पता चलेगी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टैंडिंग आउट इन द मार्केट। इफ यू आर एन इनोवेटिव पर्सन, तो आप दूसरों से ऑब्वियसली अलग लगोगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम के। Adapting to changes, yes, you can change, आप easily adapt कर जाओगे because you are already having the multiple solutions. तो आपको पता होगा, you know that what solution has to be put at that particular problem. Creativity तो आपके पास पहले से ही आएगी। Creating sustainable solutions, right?
वंस यू आर हैविंग एन इनोवेशन माइंडसेट, तो आप हर चीज को सस्टेनेबिलिटी में काउंट करोगे कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को और कैसे सही कर सकता हूं ताकि इसके अंदर मेरे को कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़े. तो दैट इज द मेजर फैक्टर इन दैट. हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, फंडिंग वाला पार्ट देखा सबने शार्क टैंक के अंदर. फंडिंग वाला पार्ट देखा शार्क टैंक के अंदर. अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ यार, वहां पे आके वो लोग क्या करते हैं? वहां पर आके क्या करते हैं वो लोग? पिच करते हैं. पिच करते हैं. ओके, और वहां पर आके पिच करने के बाद क्या मांगते हैं? इक्विटी मांगते हैं. अच्छा, इक्विटी कौन लेता है? कौन सा इन्वेस्टर? और नेक्स्ट स्टेज पे हाँ, और नेक्स्ट क्राउड फंडिंग में ले जाएंगे. क्राउड फंडिंग में नहीं जाएंगे. ओके, तो बूटस्ट्रैपिंग एक पर्टिकुलर फंडिंग का पार्ट नहीं होता, क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें आपको कोई भी फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ज़रोदा का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या करता है वो? ग्रो ऐप की तरह ही है, ट्रेडिंग वगैरह में चलता है उसका कॉन्सेप्ट. तो ज़रोदा के अंदर भी सिमिलर है, उन लोगों ने एक भी रुपये की फंडिंग नहीं ली. तो ज़रोदा इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप. If we talk about angel investor are those investor who gives you early stage funding, seed funding, equity की बेसिस पे. वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कुछ, 2-4 वीसी से नाम बता सकते हो जो मामा नहीं है, वो उसके अंदर है, शार्क टैंक के अंदर आते हैं. मामार्थ आती है. मामार्थ कहाँ से आ सकती है? मैंने थोड़ा गुस्सा नहीं हुआ यार मैं. चल करो, बताओ. मामाअर्थ के अंदर, अच्छा मामाअर्थ किसकी कंपनी है? कितने प्रॉफिट में हो? कितने लॉस में है? कितने? 8,000. कौन बोला 8,000 के लॉस में? मैं दे देता यार. अराउंड 6,000 करोड़ के लॉस में है. इतने लॉस में है, हजारों करोड़ के लॉस में है. पूरे 11 साल 15 दिन के बाद हमारे ओला को प्रॉफिट हुआ था, तब तक वो लॉस में ही थी. फिर यार ये गाड़ियां कहां से खरीद लेते? इतनी बड़ी बड़ी रेंट की गाड़ी होती है, जूम कार लेते हैं क्या? फिर कहां से लेते हैं? वैसे मैं बता दूं, मेरी सारी कंपनी बूटस्ट्रैप है. वी डोंट टेक एंजल वेंजल. हम लोग, हमारा एक ट्रेडिंग पर्सन है वो मेट्स विद रितेश अग्रवाल एंड ऑल. रितेश अग्रवाल की जिंदगी ऐसी चल रही है कि बस वो उठता है, एक ऑफिस पे जाता है, उससे कोई काम नहीं करने देते, उसको बाहर भगा देते हैं. यही काम रहता है एक वेंचर का. वेंचर ऑलवेज मूव यू आउट फ्रॉम द व्हेनेवर यू आर देयर टेन्योर. ओके, आईपीओ के बारे में जानेंगे उस टाइम पे. आई विल टेल यू. बूटस्ट्रैपिंग जिसमें आप कोई फंडिंग नहीं लेते. एंजल इन्वेस्टर अर्ली स्टेज में आपको इन्वेस्टमेंट देता है. जो शार्क टैंक पे आते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो अर्ली स्टेज पे नहीं देते, वो अर्ली स्टेज के बाद देते हैं. वंस यू आर हैविंग स्केलिंग मॉडल और वंस यू आर हैविंग द सेल्स ट्रैक्शन हम कहते हैं उसको. जब आपके पास एक ट्रैक्शन बन जाती है, ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा है सेल्स के अंदर. किसी भी कंपनी की बैकबोन कौन होती है? राइट. बाकी सारे बैकबोन नहीं होते, वो सब कमर तोड़ने वाले होते हैं. कोई भी पैसा नहीं जनरेट करता अपार्ट फ्रॉम सेल्स. ओके, अच्छा मुझे एक टर्मिनोलॉजी बताओ. अगर हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है कि वो सेल्स हो रही है, क्या हो रहा है? अगर एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है तो वो हॉस्पिटल की सेल है
क्या है? बोल के दिखाओ वहां पे ये बात कि हमारे कस्टमर आए हैं नहीं बोल सकते ना? हाँ, ये एथिकल हो गया थोड़ा सा, राइट? अच्छा, क्राउड फंडिंग होता है भीख मांगना, ठीक है, चंदा इकट्ठा करना। तो इसमें क्या होता है कि डोनेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सिंपल टर्म्स के अंदर। जो भी एनजीओज, फाउंडेशंस डोनेशन के नाम पे पैसे लेती है, दैट इज अ क्राउड फंडिंग। एंड वन मोर थिंग, आपने देखा होगा कि मेरा नाम मुकेश है, माँ का 2 कंगन बिक गया, देखा ना वीडियो, माँ के हाथ का 2 चूड़ी बिक गया, तो दैट इज ऑल्सो क्राउड फंडिंग पार्ट। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सीधा क्राउड फंडिंग करती हैं, उसको ये नहीं पता था कि मैं गुटखा खा रहा हूँ, बट उसको ये पता है कि चूड़ी बिक गया। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्राउड फंडिंग। हम लोग बहुत सारी क्राउड फंडिंग देख सकते हैं, एड्स आती हैं आजकल, बहुत सारे चैनलाइज पार्टनर बन गए जो क्राउड फंडिंग कराते हैं 5-5 लाख 20-20 लाख की, फॉर द पीपल हु आर सर्वाइविंग फ्रॉम कैंसर एंड ऑल। इट्स गुड। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में सबको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टार्टअप हूं और मैं इस कॉलेज के अंदर एक स्टार्टअप कर रहा हूं। मैं इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर गया, मतलब इंक्यूबेशन छोड़ो, सिर्फ मैं स्टार्टअप कर रहा हूं। बूटस्ट्रैप करता हूं तो मैं अकेला कर लेता हूं, मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे उसको ग्रो करना है तो मुझे सीड इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मेरे पास है नहीं, तो मैं एंजल के पास गया, एंजल मुझे नहीं मिला। वेंचर के पास जाने के लिए मैं इतना बड़ा हुआ नहीं अभी। नाउ क्राउड फंडिंग मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नेटवर्क्स नहीं है। अब मेरे पास आखिरी चीज बचती है, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड प्रोजेक्ट्स। MSME, स्टार्टअप इंडिया, KVIC, बायरैक, इंडीग्राम्स, सच काइंड ऑफ एजेंसीज, सच काइंड ऑफ आपने वो देखा होगा, आपका SIH भी देखा होगा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, वो आपको कैश मनी प्राइज देता है। इन सारे एजेंसीज के साथ जब आप मिलते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट्स कितनी सारी हैं। 950 से ज्यादा ग्रांट्स हैं इंडिया के अंदर जो सिर्फ स्टार्टअप्स को मिलती हैं। और व्हेन यू आर इन इंस्टीट्यूशन, जब आप स्कूल या कॉलेज के अंदर हो, तो आपको वो ग्रांट्स मिलने का 85% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक इंस्टीट्यूशन का नाम जुड़ा है। आप इंडिविजुअली लेने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आप कब भाग गए तो, राइट? बट इंस्टीट्यूशन कहां भागेगा? दैट इज द सिक्योरिटी जो आपको वहां पे मिल जाती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जाओगे तो वो एक सिक्योर्ड लोन की तरह होता है जिसमें आपको देना पड़ेगा अपने घर का पेपर एंड ऑल। बट यू आर इन इंस्टीट्यूशन, तो ट्राई एंड अप्लाई विद गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम, you can get up to 25 lakh, 50 lakh, 1 crore, 2 crores easily. Okay. Now एक आखिरी चीज आती है, incubator and accelerator, जो कि हम हैं। हम लोग क्या करते हैं? We are having the incubation center and accelerator team. आप लोग एक, जैसे कि womb होता है ना जहाँ बच्चा पनपता है, तो वैसे ही स्टार्टअप पनपता है इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर, और वहां पर हम लोग उनको सारी सुविधाएं देते हैं, फ्रॉम गाइडेंस टू मेंटरशिप टू सेल्स, कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, आपका गाइडेंस पाथ क्या होगा। एक तरीके से हम उसको उंगली पकड़ के बड़ा करवाते हैं। उसको सीड लेवल तक की फंडिंग, सीरीज A, B तक की फंडिंग हम लोग पहुंचाते हैं एक्सेलरेटर के थ्रू। दैट इज द वर्क ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। लेकिन यहाँ पे किसी को मालूम नहीं होगा, तो इनको पता करना चाहिए। आप लोग काफी सारे कॉलेजेस में जाते होंगे तो वहाँ निधि स्कीम, सिद्धि स्कीम, ये सारी स्कीम्स होती हैं जिनके थ्रू आप लोग यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फंड्स टू ओपन अप योर स्टार्टअप। कितने लोग यहाँ जानते हैं कि वेबसाइट बनाना एक स्टार्टअप नहीं होता? जानते हो आप? सर जानते हैं। काफी लोग होते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है सर, हमारा काम इतना हो गया एंड वी आर लाइक, हमने बहुत काम कर लिया, हम पिछले 2 महीने से इस पे लगे हुए हैं। दैट इज नथिंग। मेकिंग अ वेबसाइट इज नॉट अ स्टार्टअप, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। यूटिलाइज योर, ओके, एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। व्हेन एवर यू आर डूइंग अ स्टार्टअप, डू सेल्स फर्स्ट। अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको भले ही अपने मामा को बेच दो, लेकिन बेच कर दिखाओ। अगर आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। आप नहीं बन सकते एक सेल्स पर्सन, नो एंटरप्रेन्योर, और इस जर्नी के अंदर नहीं जा सकते। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। थैंक यू। ओके, फंडिंग गेम, हु वांट्स टू बी एन इन्वेस्टर? कौन इन्वेस्टर बनना चाहता है? एनीवन? किसी को बनना है इन्वेस्टर? ना तो तुम्हें पिच कर रही, ना तुम्हें इन्वेस्टर बनना। भाई मैं लगा दूंगा पैसा, चलो
कुछ कर लो तुम बस। Who wants to be an investor? किसी को बनना है? अश्नील ग्रोवर बनना है कि अश्नील ग्रोवर? नहीं बनना यार, गजल बनना। अमन पांडे, किसी को नहीं बनना? चलो ठीक है, नेक्स्ट कर दो सर। आलू है, कांदा है, सुबह से एक भी नहीं बिका है। द एलिवेटर पिच सेलिंग योर आइडिया इन 60 सेकेंड। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखी है सबने? सबने देखी है? हाँ, सब देखा। सेल में दिस पेन वाला कंपटीशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? मुझे ये पेन बेच कर दिखाओ। ये पेन बहुत इजी हो गया अब तुम्हारे लिए, तुम बेच दोगे यार। माइक तो सर, माइक क्या मैं, अच्छा माइक के लिए बोल देंगे जयकारा बोलना है आपको, अभी बोलो। कोई मेरे को ये कुछ बेच कर दिखाओ यार, कुछ है मेरे पास। माइक बेचोगे? कौन बेचेगा यार? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? चलो, What is your name? मेरा नाम वेंकटेश भारती भाई। Okay. I want you to write your name on this hanky. Sir, you don't have a pen. You have already one pen. How can I sell you a pen? इट्स डिपेंड अपॉन यू ना, ये तो मुझे चाहिए। हार गया यार ये। और बताओ, और कौन बेच सकता है? भेज देगा यार? आज मैं आ रहा हूँ तो चलो चलो। आगे भैया, ये मत करो, मेरा जॉगिंग करा रहे हो मेरे से। लो, कितने का दे रहा है? कितने तेरे पास? तू बता कितने का देगा? मैं बेचना हूं। मेरे को भेजना भाई। आपको बेचना है? पेन है मेरे पास, ये मत भूलिए। कौन सा है? अबे पहले ये वाला खरीद ले, पहले ये वाला खरीद ले, फिर बेच दियो। सब वो ग्रीन पेन है, ये ब्लू है। हाँ तो दुबई का है। तो दुबई का है। दो नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपको लेने, आपको पेन की जरूरत है? आपको इसमें की जरूरत है? नहीं नया कस्टमर आ गया। नए कस्टमर तो आएगा ही। नहीं, नए कस्टमर भी नहीं आएगा। ऐसे कैसे? मेरे को भेजना भाई। ब्लैक पेन है, ग्रीन है। हाँ तो मेरे पे है। हाँ अभी चाहिए नहीं ना? नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी लाइक, कुछ ऐसी टैक्टिक लगानी पड़ेगी। हाँ? ले भाई, मेरे पेन ही नहीं है। हाँ मुझे करना ही नहीं साइन। मैं डिजिटल सिग्नेचर यूज करता हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। इसने, हर्ष ने मेरे को पैसे के जाल में फंसा लिया। उसने बोला सर इस पेन को खरीदने पैसे वैसे आएंगे आपके पास। मैं मंदिर जाना छोड़ देता हूँ, पेन आ गया मेरे पास। सर नेक्स्ट कीजिएंगे, करेंगे आप? नेक्स्ट कर दीजिए यार, ये सब बेकार की बात है। आगे टाइम नहीं है मेरे पास, 5 अभी और आगे चलो। हाँ पीछे 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 सीन देख रहे हो मूवी का? कौन सी मूवी है? वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। अब इसमें लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग फंडिंग स्टेजेस फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इट? इसमें क्या सिनेरियोज है? अंडरस्टैंडिंग फंडिंग फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी XYZ ममाअर्थ का नाम ले लेते हैं। ममाअर्थ नाम की कंपनी है जिसके अंदर हम लोग कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स देखते हैं, राइट? जब उन्होंने शुरुआत की थी अपनी तो उनको कुछ फंडिंग मिली होगी 100 करोड़ की, ठीक है? अब ममाअर्थ की वैल्यूएशन कितनी हो गई? उनकी कंपनी में सेल्स थी 1 करोड़ की, 100 करोड़ उनकी वैल्यूएशन हो गई जब उनको, मतलब 500 करोड़ हो गई वैल्यूएशन जब 100 करोड़ मिले। नाउ कंपनी वैल्यूएशन कुछ नहीं होता भाई, हवा में होता सब, ठीक है? 5 साल से पहले कुछ नहीं निकाल सकते उसमें आप, जब स्टार्टअप बनता है।
अब उन पैसों का इस्तेमाल हो गया जो 100 करोड़ आए थे, अब 85 करोड़ रुपीस बचे हैं, मतलब 85% खत्म हो गया, सिर्फ 25 करोड़ बचे हैं। मामा अर्थ वाले गए हो कहीं और, उन्होंने बोला भैया मेरा तो पैसा खत्म होने वाला है, मुझे अब और वैल्यूएशन चाहिए। फिर उन्होंने सीरीज बी उठा ली, सीरीज ए पार करके सीरीज बी पे चले गए, फिर उन्हें मिले 10,000 करोड़ रुपए, मतलब 10 यानी 1,000 करोड़ रुपए मिल गए। 1,000 करोड़ में से उन्होंने कितने खत्म कर दिए? 5,000 करोड़ खत्म कर दिए। फिर सीरीज सी पे चले गए, अब होगी 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन होगी। नाउ उस 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन कुछ नहीं है लेकिन पैसा सबका, लिक्विड मनी तो खत्म हो गया, अब जो हवा में पैसा वही है। अब हमारी गजल जी ने हाथ से सर पे हाथ पकड़ लिया, अरे मैं क्या करूं, इतना सारा पैसा आ गया। हमारे जो सीसीडी वाले भैया थे ना, जो पंखे के चक्कर लगाए थे, तो वो इसी वजह से लगाए थे कि कंपनी पे कैश, लिक्विड कैश तो है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तो लिक्विड पे काम करेगा ना, वो कहेगा भाई ये क्या बता रहा है मेरे को, वैल्यूएशन मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए, राइट। जब इतना सारा भीख मांगने के बाद जब आईपीओ आता है, तो आईपीओ में वो मांगते हैं हमसे भी। ये सब स्टार्टअप का है, रियलिटी बता रहा हूं आपको। आईपीओ में क्या होता है, वो कहते हैं हमारा जब 100 करोड़ 500 करोड़ ऊपर हो जाता है कंपनियां, तो आईपीओ में लिस्ट हो जाती हैं। ठीक है, आईपीओ में लिस्ट हो गई, उन्होंने बोला अब तो मुझे कोई पैसा देगा नहीं, पब्लिक आईपीओ में चले जाते हो, हम उनके शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदते रहते हैं, भाई बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और शेयर की प्राइस कर देते हाई। अब जो 1 रुपए का शेयर, जिसकी 1 रुपए कीमत नहीं थी, हमने उस 1 रुपए की शेयर की कीमत बना दी 5,000 करोड़, 500 करोड़, 1 करोड़, 20 करोड़, हमने अपना पैसा लगा के। फिर वो क्या करते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। अब गजल जी मजे में, और हमारा तो भाई पैसा लग गया यार, लॉस हो गया। पेटीएम का भी हुआ ना, अभी बैंड बज गई, वो इसी वजह से हुआ, और उनका लोन चुकता हो गया। अब उनको किसी का पैसा ही नहीं देना, दे आर इन प्रॉफिट ना, हमने तो पैसा दे दिया उनको। तो दैट इज द रीजन पब्लिक आईपीओ रिलीज होता है। इसीलिए ही स्टार्टअप्स के ऊपर लोग कम भरोसा करते हैं रादर देन बड़ी बिग फर्म्स लाइक टाटा, बिरला, ये सब पे लोग पैसा लगाते हैं अपने फंड्स, शेयर्स खरीदने के लिए। दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रस्ट स्टार्टअप्स एज वेल, आई ट्रस्ट ऑन बिजनेसेस। इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट कीजिए सर। स्टार्टअप बनाओ यार। मैं आपके क्या मतलब कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं, हम लोग उनको एक फॉर्म वगैरह भी देंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिटरली इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप, वी आर, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, ये सब जगह मैंने सेशन किए। वहाँ पे एक चीज़ रहती है, 5% बच्चे ही होते हैं जो सक्सीड करते हैं, जिनका नाम गुड बुक्स में आता है, बाकी सच्ची में एवरेज होते हैं। कुछ ऐसा उनका एक ही विजन रहता है, जेई क्रैक करना, उसमें मेंस में क्रैक करना, एडवांस में क्रैक करना और वहाँ चले जाना। आफ्टर दैट वो जड़ी बूटी। तो सिनेरियो क्या है कि आपको व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको नहीं पता आगे जाके आप क्या बनने वाले हो, बट ट्राई आउट, एक बार ट्राई करो। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट ट्राई दिस कल्चर एज वेल, इट्स अमेजिंग। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं सच बताऊं अपना, मैं रूटीन अगर बताऊं, वैसे मैं अपने बारे में कुछ और बताऊं कि मैं अभी, मेरे को आज से 1.5-2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक आया थे, 2 बैक टू बैक, जिस वजह से मेरा 20% बॉडी पैरालाइज हो गया है। तो आपको अनसर्टेनिटी तो मिलती है इसके अंदर, लेकिन यू हैव टू वर्क अराउंड लाइक 17-18 आवर्स। लेकिन एक टाइम के बाद यू विल गेट, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जब मन करे मैं छुट्टी ले लेता हूँ। छुट्टी क्या, मेरी कंपनी में क्या छुट्टी लूँगा, तो उठो, कहाँ पे चले जाओ, पूछ लो जो, तो वो काफ़ी रिलैक्सिंग रहता है। मैंने वो वाली लाइफ भी जी है जब मैं नोएडा और गुड़गांव में, छतरपुर आ गया, अब उतरना है, दिल्ली हाट में भीड़ रहेगी, तो वैसा वाला लाइफ भी जी है। तो आपको खुद चूज करना है व्हाट यू हैव टू डू। मेरे सच्ची में ऐसा सिनेरियो हुआ था कि आई वाज इन मिडल ऑफ द दिल्ली हाट स्टेशन, और जैसे मूवीज में नहीं आता, पीछे से आगे से लोग जा रहे होते हैं, आप बीच में से अनकॉन्शियस से हो जाते हो। तो मैंने वो सीन फेस किया। एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि भाई बहुत होगी नौकरी, 10 दिन में हार गया मैं तो
नहीं हो पाएगी, बिकॉज वैसा माइंडसेट बचपन से ही नहीं था। IEEE का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे बेस्ट आइडिया कंपटीशन में भी आई वाज इन कॉलेज डेज, मेरा काफ़ी इसमें रहता था पिचिंग वगैरह सब करना। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा यार कि अपना विजन क्लियर रखो कि व्हाट यू हैव टू डू, वेदर यू आर अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन, वेदर यू आर स्टार्टअप कल्चर पर्सन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप किसी भी कार्य को इतने अच्छे से करो कि आपसे अच्छा कोई ना कर पाए। दूसरी चीज देखो, जब आप उड़ रहे होगे ना, आपके टांग खींचने के लिए बहुत लोग आएंगे कि ये कैसे ऊपर जा रहे हैं, और लिटरली आते हैं। एंड डोंट थिंक दैट कि ये मेरा दोस्त है, मेरा ये है। फ्रेंड्स आर ऑल फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स आर नॉट फ्रेंड्स। मैं सिंपल एक सिचुएशन देता हूँ, 20 करोड़ की नौकरी है, तुम्हारा दोस्त और तुम हो, कौन जाएगा? मैं। अब तो हमसे मैं हो गया ना, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि such kind of situation will come into your life that where you have to choose for yourself. That is not selfishness, that is self care. दोनों में फर्क है। Believe in your vision, ऐसा पढ़ दिया ना? अच्छा, follow your passion. कोडर कितने यहाँ पे? कोडिंग किस किस को आती है? कोडिंग आती है? आती है कोडिंग? पढ़ के बताइयो। थोड़ी बहुत आती है। Anybody else who was a coder? आती है? कोडिंग आती है? हाँ, क्या क्या आती है? अच्छा, और कोडिंग आती है उसे? चलो ठीक है। Anybody else who was a very good coder? You are a very good coder. जावा पढ़ के बताना मुझे। जावा। अच्छा, यू आर अ कोडर। अच्छा चलो, आपके यहाँ पे कोडिंग कॉम्पिटिशन करें इफ यू वांट। फिनिश। ओके, कोडिंग कंपटीशन करें आपके यहाँ पे? नहीं? अरे यार, आइडियाथॉन करें आपके यहाँ पे? आइडियाथॉन। टॉपिक मैं दूंगा, आप लोग आइडियाज लेकर के आओगे। यस, आइडियाज तुम लेकर के आओगे, टॉपिक मैं दूंगा, जो सिलेक्ट होगा वो मेरे साथ जाएगा। जहां मैं जाऊंगा करोगे तो बताओ। भाई देखो, मैं बहुत चिल आउट आदमी हूँ, मेरे से नहीं होता ये टेंशन लेके काम वाम। मैंने 2 साल मैंने बहुत टेंशन लिया यार, खुद पे वो टेंशन लिया, मैं ऐसा हो गया मेरा। तो अब मेरे बस की नहीं हो सब करना, तो मैं टेंशन देता हूँ, लेता नहीं हूँ मैं। और मेरे साथ जो काम करते हैं वो मेरे को कहते हमारे पे टेंशन नहीं है, कुछ काम दो। तो करोगे आइडियाथॉन में पार्टिसिपेट? यार आवाज नहीं आ रही। आइडियाथॉन इज नॉट लाइक कि आपको हैकिंग वैकिंग करनी है, वहाँ पे अपना आइडिया प्रेजेंट करना है बस। कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया। मैं 3 टॉपिक्स दूंगा, डिफेंस, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर, 3 टॉपिक्स, ठीक है? उन तीनों टॉपिक में से एक, मतलब मैं टीम्स लेकर के जाऊंगा अपने पास। इफ यू वांट टू डू समथिंग, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे स्टार्टअप कल्चर में ग्रो करना होता है। सब कुछ मैं ही बताऊंगा। घर के कागज लेके आना मेरे पास अरे कुछ मत लेके आना, बस आ जाना, ठीक है? कोडर हो आप, बिल्कुल समझो जैसे लोग। नेक्स्ट करो अच्छा, मेरी स्टोरी थोड़ी सी बता दूं मैं, 2 मिनट लगेंगे टेक। अच्छा, मेरा नाम वेंकटेश भारती है, जैसा आपको पता होगा। नहीं पता? अब तो पता है। अच्छा, देखो मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? आई वाज अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड। तो इतना नोटोरियस था कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है, मैं इतनी बार गिरा हूँ कि वो 7-8 बार टूट चुका है। तो आई एम लिटरली वेरी बैक बेंचर, मतलब जैसे मैम ने बोला कि दीवार के पीछे भी जा सकते हैं तो वहाँ भी चले जाते। आई एम दैट काइंड ऑफ बैक बेंचर। पटाखे फोड़ना स्कूल के अंदर, सस्पेंड हो जाना, तो ये सब काम मैंने बहुत किए। उसके बाद व्हेन आई कम टू माय कॉलेज, मैं कॉलेज में गया, बट आई चेंज माय लाइफ अलॉट। मैंने अपने आप को ड्रास्टिकली चेंज किया। तो उसके बाद एक दिन मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी मेरे स्कूल में था। यस मैम। यस मैम, चेंज इज कांस्टेंट।
अगर मैं वही रहता, तो वही मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर मैं वही रहता तो एक बार मैं अपने भाई को स्कूल से लेने गया था, तो मेरे भाई ने बोला भाई आया है, तो वो मैम कहती हाँ भाई तो आया ही है, मतलब वो वाला भाई, गुंडे वाला. तो आई एम दैट काइंड ऑफ नोटोरियस पर्सन. तो देन आई स्टार्टेड इन, मैं नुक्कड़ नाटक मैंने ज्वाइन किया, थिएटर्स करे टू कम आउट माई फियर्स. स्टेज फियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको अपनी जुबान बुलंद रखनी पड़ेगी हर जगह. आप आज नहीं बोलोगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी आंसर भी नहीं दिया, मैं उनको सीधा बोलता हूँ यू आर लूजर्स. यस यू आर, डेफिनेटली यू आर. ना आप इंटरव्यू में बोल पाओगे, ना आप अपने हक के लिए बोल पाओगे, ना आप कहीं और बोल पाओगे, आप सिर्फ पिटाई खाते रहोगे. जिंदगी भी मारेगी, दुनिया मारेगी, सब थप्पड़ वप्पड़ मारती रहेगी. If you want to change in yourself, you want a change in yourself, you have to speak up as louder as you can. Next, after that I started my MCA. MCA में मैंने वही मेडल मूडल मिले, ये सब हुआ. And that time I developed one thing for DRDO. मैं आपको बता देता हूँ what was that. फिर हम लोग इसको समाप्त करेंगे सेशन को. How I selected that particular like scientist field and all. I have done a lot of inventions as well. बहुत invention है मेरी. Next, पीछे करो, अभी मत दो यार ये तो. हाँ. भाग जाएंगे यार, क्या बात कर. तो what happened? एक हेलमेट मैंने बनाया था DRDO के लिए. उस हेलमेट में क्या था, जब हमारे सोल्जर्स होते हैं, सब लोग मार काट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सोल्जर्स के साथ कि सामने वाले मार दो, लेकिन सोल्जर सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं देता. तो मैंने सोल्जर सेफ्टी पे ध्यान दिया. मैंने एक ऐसा हेलमेट डेवलप किया जिसके अंदर मैंने IFF टेक्नोलॉजी लगाई. IFF टेक्नोलॉजी होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फॉय. आपने तो कभी देखा होगा कि हमारी सीमा के अंदर कोई भी दुश्मन देश का जहाज आ जाता है तो हमारे रेडार पे पता चल जाता है, राइट. सिर्फ दुश्मन देश का ही क्यों पता चलता है, अपना क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि अपने पास तो सिमिलर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स है ना. तो सिमिलरली इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी मैंने माइक्रो नैनो लेवल पे एक हेलमेट के अंदर यूटिलाइज किया. उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के बाद व्हाट आई हैव डन, मैंने वो हेलमेट बनाया, उसका प्रोटोटाइप बनाया. उसमें क्या होता था, 180 डिग्री के एंगल पे 80 मीटर तक कोई भी इंसानी गतिविधि होगी पूरे एरिया के अंदर, तो उस हेलमेट को हमारे सोल्जर्स को पता चल जाएगा. बस और बस, ना जानवर ना ही किसी अपने सोल्जर की, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन देश के सोल्जर की ही इंसानी गतिविधि को वो डिटेक्ट करके बताता था. फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड द हेलमेट. और उस हेलमेट को बनाने के लिए मैं दो चीजें आपसे पूछूंगा कि वो उस पर्टिकुलर इतनी बड़ी इन्वेंशन को करने के लिए हाउ मच टाइम दैट आई हैव टेकन, कितना समय मुझे लगा होगा उसके लिए. 1 साल, 6 साल, 2 साल. कॉलेज के बाद क्या है, मैं उसमें तारे लेके बैठ गया था उसके बाद. कोई और बता सकता है कि लाइक हाउ मच टाइम दैट आई हैव टेकन फॉर दैट थिंग? 3 महीने. कोई और? लेस देन मंथ? 6 दिन. 6 दिन, 6 days यार, 6 days भाई, क्यों मुझे ठीक कर रहे हो क्या? I have taken 6 days to make that particular solution. Yes, बताइए. हाँ, एक्सपेंस पूछ रहे हैं सर. अच्छा मुझे बताओ कि कितना खर्चा हुआ होगा उसके ऊपर? 15,000. बिडिंग करो. 16,000. 7 करोड़. हाँ, 25 lakhs. 700 रुपए. कौन बोला है? कौन बोला? 700 रुपए? क्या बात कर रहा है, इतना भी नहीं है यार. 1600 रुपए का खर्चा हुआ था, केवल 1600 रुपए का खर्चा. अब मैं वो न्यूज़पेपर कट आउट आई थिंक उस पीपीटी में नहीं है, और नेक्स्ट टाइम आई विल शो केस टू यू. तो 1600 रुपए का खर्चा हुआ था उसके अंदर, और 11 लाख लोगों में से मैं जीत गया था. नेक्स्ट करेंगे सर, तो मैं तारीफ करोगे और तारीफ करूँ. Thank you everyone for attending this session. I hope you enjoyed the session. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat. Hope our audience have gained some knowledge that will help them in their future.
Thank you all for your presence. Thank you, sir. I hope you all enjoyed the session. You all had a learning from here. At least you have a vision of what is an entrepreneurship, what is innovation, IPR क्या है. At least एक छोटा सा introduction आज के session में हुआ है. And as sir said, he will be helping us to conduct ideathon. We will be able to participate in hackathon as well, and we will do that. How many of you are there with me? Yes. How many of you are there? As a team we will be going forward, and definitely we will be winning there. Yes, thank you so much for the enthusiasm you have shown. You all are like the first year students, and this is the best time for you to get a knowledge of this level, so that you can improve your vision, you can improvise, you can work upon yourself and proceed for the future. Sir ने ये भी बताया कि he was very notorious at when he was in 12th standard and his college days, but today I think it is a 360-degree flip. And I won't say 360 degree क्योंकि वो दोबारा से लौट के उसी point पे आता है. Now it is a 180-degree flip. ठीक है. So it is a 180-degree flip, and it is much required. A disciplined life, a discipline for oneself is much required. ठीक है. So I think from sir it is a learning कि ठीक है बचपना बाकी चीज़ें एक एज तक रहती है, उसके बाद खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स डिसिप्लिन. Those students who are finding a joke in my talks may please come here and share the thing with me. Last 4 of you please come here. Yes, all 4 of you please. Now just share what is your learning from today. मैम IPO सर ने हमें IPO के बारे में बताया और लिस्टिंग वगैरह के बारे में बताया और स्टार्टअप्स के बारे में बताया. सर ने बोले कि आगे आइडेथॉन करवाएंगे. आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है. अच्छा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि आइडेथॉन में पार्ट लेंगे कि टीम में लेंगे, अलग अलग करके लेंगे. Very nice. And what was the idea, like इतनी हंसी जो आपको आई उस पे? मैम हम कल ही हमने एक बार गुरु तेग बहादुर कॉलेज जो है वहाँ पे भी करा था. Okay. पार्ट लिया था. तो which competition you had? Hackathon which topic? मैम जो BCA लैब्स आपने देखी अभी वेबसाइट के लिए तो सर ने बिल्कुल नहीं बताया. तो आइडेथॉन में भी पार्ट ले लेंगे. आइडेथॉन का भी हम पे. Good. Thank you so much for sharing, and it was nice hearing from your side that you are into the participating mode from today itself. Thank you so much.